প্রতিনিয়ত মূল্যবৃদ্ধির কারণে মাথায় হাত সাধারণের। এদিকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক দুর্বলতার কারণে বৃদ্ধি পাচ্ছে রোগও। কিন্তু আর্থিকভাবে বিশেষ সুচিকিৎসা করাতে পারেন না খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষেরা। তাদের কথা মাথায় রেখে মুর্শিদাবাদের ফারাক্কার ফতেপুর এলাকায় এক শান্ত গ্রাম্য মনোরম পরিবেশে গড়ে উঠেছে হায়াত মেডিকেয়ার। 5 বছর আগে এই হায়াত মেডিকেয়ারের সূচনা করেন 3 বন্ধু। তারা তাদের পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করার সময় সিদ্ধান্ত নেন যে ডাক্তার তো সবাই হয়, কিন্তু প্রত্যেক মানুষের সামাজিক দায়িত্ব থাকে। সেই দায়িত্ববোধের জায়গা থেকেই হায়াত মেডিকেয়ারের ভাবনা আসে তাদের মাথায়। সেই সঙ্গে তারা সিদ্ধান্ত নেন এমন জায়গায় হসপিটাল তৈরি করা হবে যেখানে মেডিকেলের সুবিধা নেই, সেই সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের সাধ্যের মধ্যে যেন তারা পরিষেবা পেতে পারেন বলে জানান ডাক্তার নাজম হাসিব। মূলত সাধারণ গ্রাম বাংলার মানুষদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার কথা মাথায় রেখেই গড়ে তোলা হয়েছে এই নার্সিংহোমটি। বিভিন্ন বিভাগে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করে হায়াত মেডিকেয়ার এলাকার এক উল্লেখযোগ্য স্বাস্থ্য সংস্থা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। মুর্শিদাবাদ, মালদা ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে রোগীরা আসছেন চিকিৎসা করাতে। এছাড়া ঝাড়খণ্ড, বিহার থেকে মানুষ এখানে চিকিৎসার জন্য আসেন। এই নার্সিংহোমের কর্তারা জানিয়েছেন, হায়াত মেডিকেয়ার উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা দিয়ে থাকে। বিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে হায়াত মেডিকেয়ার। আধুনিক চিকিৎসা দেওয়ার লক্ষ্যে হায়াত মেডিকেয়ার তৈরি হয়েছে। এখানে একগুচ্ছ নামী ডাক্তার রয়েছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুস শাকুর, জেনারেল সার্জারি এবং ইউরোলজি বিশেষজ্ঞ; চক্ষুবিদ্যা বিশেষজ্ঞ ডক্টর নাজম হাসিব; কার্ডিওলজি এবং জেনারেল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডক্টর ফিরোজ আলম। এই নার্সিংহোমে রয়েছে অত্যাধুনিক মানের অপারেশন থিয়েটার। অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে সাজানো হয়েছে এমার্জেন্সি বিভাগকেও, সেই সাথে রয়েছে উন্নত মানের ল্যাবরেটরি। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, এখানে ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে একে অপরের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে নৈতিকতা ও সততার সঙ্গে কর্মীরা কাজ করেন। হায়াত মেডিকেয়ারে গিয়ে রোগীদের থেকে খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেল, প্রতিদিন অসংখ্য রোগী এখানে ভিড় করেন। উন্নত আধুনিক পরিষেবা ও স্বল্প ব্যয়ের কারণে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আম মানুষের প্রিয় হাসপাতাল হয়ে উঠেছে এই হায়াত মেডিকেয়ার। রোগীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, উন্নত চিকিৎসার পাশাপাশি রোগী ও তার পরিবারের সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করেন হায়াত মেডিকেয়ারের চিকিৎসক নার্সেরা, যার কারণেই আম মানুষের ভরসা ও ভালোবাসার ঠিকানা হয়ে উঠেছে এই হায়াত মেডিকেয়ার। কীরকম ভালো, এখানে সাফ সুতরা অনেক ভালো, তারপরে ডাক্তারের ব্যবহার ভালো, তাহলে স্টাফগুলো ব্যবহার ভালো। এলাম, ভালো ইজ্জত করলো, চিকিৎসা ভালো হয়, ট্রিটমেন্ট ভালো হলো। আপনারা দেখছেন টিডিএন বাংলা। আমি মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, টিডিএন বাংলা কলকাতার প্রতিনিধি। আমরা এসে গেছি সুদূর মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর অংশে, ফরাক্কায় হায়াত মেডিকেয়ার। এক মনোরম পরিবেশে প্রত্যন্ত এক এলাকায় হায়াত মেডিকেয়ার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমার পাশে বসে রয়েছেন ডক্টর নাজম হাসিব। ওনার কাছে জানতে চাইছি, হায়াত মেডিকেয়ার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কত সালে? আমরা এই হসপিটালটা 2017-তে প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। মোটামুটি 5 বছর হয়ে গেছে এই হসপিটালটা। তো 5 বছর আগে হায়াত মেডিকেয়ার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আমরা জানতে চাইছি যে এই হায়াত মেডিকেয়ারে এলাকার মানুষদের কি কি চিকিৎসা পরিষেবা দিয়ে থাকেন আপনারা? पहले की बात है, जब हम कुछ डॉक्टर्स की एक टीम थी, जब हम लोग अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे। मैं, डॉक्टर नजम हसीब, मेरे 2 साथी हैं डॉक्टर अब्दुल शकूर, डॉक्टर फिरोज़ आलम। तो हम लोगों ने उस वक्त ही ये प्रोग्राम ऐसा किया था कि डॉक्टर्स तो सारे लोग ही बनते हैं और ये एक व्यवसाय है, एक पैसा कमाने के लिए लोगों ने पढ़ाई किया है, तो पैसा तो कमाना ही है। बट इसके साथ साथ एक हर एक इंसान का जो एक सामाजिक दायित्व होता है, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सोसाइटी की तरफ, एक समाज की तरफ होता है, वो उसमें भी हम लोग कुछ अपना पार्ट देना चाहते थे। हम लोग को ऐसा लगता था कि सिर्फ एक व्यवसाय करना या पेशा देना ही काफ़ी नहीं है, इसके साथ साथ सामाजिक कुछ दायित्व भी इंसान का पूरा होना चाहिए। तो हम लोगों ने उस वक्त ही प्लान बनाया था कि हमारी एक जो टीम है, जो 3 डॉक्टर की, वो हम लोग जा कर के एक ऐसे जगह में हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करेंगे
जो इस इलाके में, जिस इलाके में ये मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। और ये मेडिकल फैसिलिटी सिर्फ अवेलेबल ही नहीं होगा, हम लोगों का बेसिक कोर मॉडल ये था कि हम लोग ये जो फैसिलिटी देंगे, ये फैसिलिटी एक नंबर रिलायबल होना चाहिए, ऑनेस्टी के साथ होना चाहिए। मतलब हमारे पास जो कोई भी एक पेशेंट आएगा, वो हमारे पास आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए कि हमारा जो भी चिकित्सा यहाँ पे होगा बिल्कुल सटीक होगा, बिल्कुल सही होगा। इसमें कोई भी गलत काम, कोई भी गलत इन्वेस्टिगेशन, कोई भी बिना ज़रूरत का कोई भी सर्जरी, इस तरह का कोई भी बात जो आज के ज़माने में डॉक्टर के बीच में आ गया है, वो चीज़ नहीं होगा। सेकंड चीज़, ये अफोर्डेबल होगा, यानी लो कॉस्ट का होगा। हम जो भी इलाज करेंगे वो एक क्वालिटी का होगा, मतलब हम ऐसा ही क्वालिटी देंगे जो एक बड़े शहर में, एक राजधानी में, एक डिस्ट्रिक्ट के बड़े हॉस्पिटल में जैसा फैसिलिटी मिलता है, एक छोटे से गांव में, एक ब्लॉक में भी उसी लेवल का केयर, उसी लेवल का फैसिलिटी हम लोग दे पाएँ, और उसके बहुत कम रेट में। तो हम लोगों ने ये एम लेकर के यहाँ पे हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया था, और उसके बाद सारे डॉक्टर्स ने बहुत अच्छी अच्छी जगह से ट्रेनिंग की। मैंने वर्ल्ड का लार्जेस्ट आई केयर हॉस्पिटल है अरविंद आई हॉस्पिटल, वहाँ से फेलोशिप किया एंटीरियर सेगमेंट में। डॉक्टर अब्दुल शकूर जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल के सर्जन हैं, उन्होंने NRS से, जो कि वेस्ट बंगाल का बहुत ही प्रतिष्ठित एक मेडिकल कॉलेज माना जाता है, वहाँ से उन्होंने यूरोलॉजी के सर्जरी का ट्रेनिंग लिया। हमारे जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर फिरोज़ आलम, उन्होंने इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट हार्ट का इंस्टीट्यूट है फोर्टिस एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट, वहाँ से उन्होंने कार्डियोलॉजी का ट्रेनिंग लिया। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक बिल्कुल एक बेस से, सबसे लोवेस्ट लेवल से हम लोगों ने हॉस्पिटल स्टार्ट किया। OPD से स्टार्ट करते करते धीरे धीरे, क्योंकि सारे हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से ही आए हुए सारे लोग थे, हम लोगों ने धीरे धीरे, बहुत कम ही पैसा हम लोग के पास था, जो भी था हम लोगों ने इस पर इन्वेस्ट करके इसको धीरे धीरे बढ़ाया है। और ये हॉस्पिटल आज इस लेवल पे है कि इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में, चाहे मालदा डिस्ट्रिक्ट हो, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट हो, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट हो, इस आसपास के पाकुड़ का, झारखंड का कुछ इलाका है, साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट है, इस सारे इलाके में इस हॉस्पिटल को आज के डेट में एक बहुत ही सम्मान के नज़र से देखा जाता है। बहुत एक प्रतिष्ठित एक हॉस्पिटल हमारा ये आज बन गया है। और हम लोग जो एक फैसिलिटी यहाँ पे देते हैं, वो हम लोगों ने उस लेवल का फैसिलिटी दिया है जो कोलकाता में जो फैसिलिटी अवेलेबल है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जो फैसिलिटी अवेलेबल होता है। हमारे यहाँ कार्डियोलॉजी का बहुत अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट जो ऑपरेशन है वो सारा छोड़ करके मेडिकल फैसिलिटी आप जैसा कोलकाता में जैसा आप फैसिलिटी पाएंगे, बहुत अच्छे हॉस्पिटल में जैसा फैसिलिटी पाएंगे, आप यहाँ पे पाएंगे। आप यूरोलॉजी का सारा कुछ, जितना भी सर्जरी हो सकता है पॉसिबल, किडनी ट्रांसप्लांट को छोड़ करके आप सारे बड़े बड़े सर्जरीज यहाँ पे, URSL हो, PCNL हो, नेफ्रेक्टोमी हो, सारा ऑपरेशंस यहाँ पे बहुत ही अच्छे लेवल पे होता है। और आँख का भी जितना बड़ा बड़ा ऑपरेशन है, जितना प्रीमियम ऑपरेशन है, प्रीमियम लेंसेज है, मल्टीफोकल लेंसेज हो गया या टोरिक लेंसेज हो गए, या जो पहली बार ऑपरेशन होता है आँख में लेंस नहीं लगा पाते हैं, दोबारा लगाना पड़ता है, एफेक्टिव करेक्शन जो बोलते हैं, वो सारा कुछ इलाज यहाँ पे होता है। इसके साथ ही हम लोगों का हॉस्पिटल ICU के मामले में बहुत ही इस इलाके में हम लोगों ने नाम कमाया है। हम लोगों ने जितने बहुत ख़राब केसेस जो शायद बहरमपुर में या कोलकाता में मैनेज होता, वो सारा केसेस हम लोग अपने इस लेवल पे, हमारे पास बहुत ही अच्छी टीम ICU की टीम है, और हम लोग वो सारे केसेस भी यहाँ पे मैनेज करते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने रिसेंटली अभी डायलिसिस भी हमारे हॉस्पिटल में स्टार्ट किया है। तो डायलिसिस की वजह से यहाँ हमारे इस इलाके में बहुत कॉमन है, किडनी का लोग का फेलियर का पेशेंट, जो CRF के पेशेंट होते हैं, जिनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए एक फैसिलिटी यहाँ पे हो जाना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इससे हम ICU में भी जो पेशेंट जिनको हमको डायलिसिस की वजह से बहुत क्रिटिकल अवस्था में उनको रेफ़र करना पड़ता था बड़ी जगह पे, क्योंकि यहाँ पे डायलिसिस नहीं हो पाता था, अब वो भी पेशेंट्स हम लोग यहाँ पे रखने के लिए सक्षम हैं। তো আমরা ডাক্তার সাহেবের কাছ থেকে শুনলাম যে এটা শুধু ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ প্রতিষ্ঠান হায়াত মেডিকেয়ার প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সামাজিক দায়বদ্ধতাও ইনারা ভেবেছেন। তো ডাক্তার সাহেব, আমরা দ্বিতীয় একটা প্রশ্ন করতে চাইছি আপনাকে, যে মুর্শিদাবাদ জেলার মতো এক পশ্চাৎপদ জেলার মধ্যে এই ফরাক্কা জায়গাটাকে আপনারা নির্বাচন করেছেন কেন? इसका फ़र्क़ा चुनने का वजह ये था कि ये इलाका हम लोगों को पता था कि जिसमें मेडिकल फैसिलिटी नहीं था। मालदा टाउन में मेडिकल फैसिलिटी एक ठीक ठाक जिसको मेडिकल फैसिलिटी बोलते हैं वो अवेलेबल था। उसके बाद सीधा बहरमपुर, बीच में करीब करीब 150 किलोमीटर का जो एरिया है वो एरिया बिल्कुल फाका था।
और फ़रक्का ही क्यों चुना, क्योंकि फ़रक्का का कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है, क्योंकि एनटीपीसी होने की वजह से यहाँ पे ट्रेन का भी फैसिलिटी है। आप कहीं भी आना जाना चाहें, बाहर से अगर हम डॉक्टर को बुलवाना चाहें कहीं पे, अगर स्टाफ हमारे कहीं बाहर से आके यहाँ पे रहना चाहें, तो आसपास के इलाकों में फ़रक्का ही एक एप्रोप्रिएट ऐसा जगह था जहाँ एजुकेशन का भी फैसिलिटी था, रहने का भी थोड़ा ठीक ठाक फैसिलिटी था और कनेक्टिविटी बहुत अच्छा था। तो इसलिए हम लोगों ने इस इलाके के बीच में फ़रक्का को चुना। মুর্শিদাবাদ এমনিতেই পশ্চাৎপদ একটি জেলা, তার মধ্যে তো ফরাক্কা বিশেষভাবে পশ্চাৎপদ জেলা, পশ্চাৎপদ একটা ব্লক। এখানে বিড়ি শ্রমিক থেকে রাজমিস্ত্রি এবং এনটিপিসি পাশে এখানে বিভিন্ন ধরনের শ্রমিক আছে। তো এই যে শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ কি এখান থেকে বিশেষভাবে কিছু উপকৃত হয়, একটু যদি জানাতেন। देखिए, सरकार तो फैसिलिटी सभी लोगों को देती है। जो स्वास्थ्य साथी कार्ड बंगाल सरकार का एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, जिसमें सरकार ने सचमुच में गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है। मगर हमारे इस इलाके, जो पिछड़ा हुआ जो इलाका है मुर्शिदाबाद या मालदा डिस्ट्रिक्ट या दिनाजपुर है, बीरभूम है, इन लोगों के साथ समस्या ये थी कि कार्ड होने के बावजूद उनको जो क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए, जो सही ट्रीटमेंट चाहिए, वो हमारे अवेलेबल नहीं था इस इलाके में। तो आपके पास कार्ड होने के बावजूद आपको तो कोलकाता जाना पड़ेगा, एम्बुलेंस लेके जाना पड़ेगा, वहाँ रहना पड़ेगा, आपके साथ जो पेशेंट का पार्टी है उसको होटल में ठहरना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, फिर वापस आपको एम्बुलेंस में लेके आना पड़ेगा। ये जो खर्चा एक्स्ट्रा होता था, इसकी वजह से लोग बाहर नहीं जा पाते थे। बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो बाहर जाने में भी सक्षम नहीं थे। उनको यहाँ पर ही जो फैसिलिटी है, जो भी ख़राब भी ट्रीटमेंट अगर हो रहा है, उनको यहाँ पर ही करवाना पड़ता था। तो हमारे इस हॉस्पिटल से सबसे बड़ा बेनिफिट ऐसे लोगों को हुआ है जो बहुत ही नीचे तबके के थे, गरीब लोग थे, जिनको ये फैसिलिटी नहीं था कि वो बड़ी जगह पे जा कर के अपना ट्रीटमेंट करवाएं। उनको अब सेम क्वालिटी, वैसा ही ट्रीटमेंट, वैसे ही क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इस छोटे से इलाके में, छोटे से ब्लॉक टाउन में यहाँ पे हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर जिनके पास कार्ड नहीं भी होता है और उनको इलाज का ज़रूरत पड़ता है और इमरजेंसी होता है, हम लोग उनको जो भी डिस्काउंट, अगर वो उनके कैपेसिटी के हिसाब से जितना वो दे सकते हैं, कभी कभी हम लोग 100% भी फ्री कर देते हैं, कभी कभी कुछ 5% 10% भी डिस्काउंट करते हैं। इसके बीच में उनकी कैपेसिटी देख करके हम लोग अपने लेवल पे भी, कार्ड नहीं भी अगर उनके पास हो तो भी जो भी उनका मदद कर सकते हैं, हम लोग अपने लेवल पे कोशिश करते हैं। হায়াত আর পাঁচটা থেকে আলাদার কারণ, প্রথম কারণ হচ্ছে আমাদের ডাক্তারবাবুরা যিনারা এখানে হায়াত মেডিকেয়ার স্থাপিত করেছেন, ওনারা সব বাইরে থেকে এখানে মানে বাইরে জব ছেড়ে এখানে এসেছেন, ঠিক আছে, লোকের পরিষেবা দেবো ভেবেই। সাধারণত মানুষ যখন বড় ডাক্তার হয়ে যায়, সুপার স্পেশালাইজড ডক্টর বা বড় ডাক্তার যাকে বলি আমরা বাংলা ভাষায়, তখন ওরা গ্রামে থাকা পছন্দ করেন না। কিন্তু আমাদের হায়াত মেডিকেয়ার ডক্টর, যেমন ডক্টর আব্দুস শাকুর, উনি ইউরোলজিস্ট, ডক্টর নাজাম হাসিব, উনি আই সার্জেন, তারপরে ডক্টর টি আসলামি, উনি গাইনোকোলজিস্ট, মহিলাদের জন্য মহিলা ডক্টর, তারপরে ডক্টর ফিরোজ আলম আমাদের কার্ডিওলজিস্ট। এইসব ডাক্তারগুলো যে এই গ্রামের মধ্যে মানুষের পরিষেবা দেবে, এটা মানে চিন্তার বাইরে। এটা প্রথম আমাদের অন্যান্য নার্সিংহোম থেকে আলাদা একটা দিক। মহিলাদের জন্য মহিলা চিকিৎসক আমাদের রয়েছে, অবশ্যই মহিলাদের জন্য আলাদা জায়গা। আমাদের হসপিটালে অ্যারাউন্ড 60% যে ক্রাউড, ওটা মধ্যবিত্তি। আমাদের গরিবদের জন্য অনেক ফ্যাসিলিটি। সব থেকে প্রথম হচ্ছে কি, আমাদের গ্রেড বি স্বাস্থ্যসাথী পরিষেবা আমরা দিচ্ছি, যেখানে অনেক বিভিন্ন ধরনের অপারেশনগুলো ফ্রি অফ কস্ট কার্ডের, স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে হয়ে যায়। যেমন অর্থোপেডিক সার্জারি হয়, ইউরো সার্জারি হয়, জেনারেল সার্জারি হয়, বিভিন্ন ধরনের সার্জারিগুলো কার্ডে হয়ে যায়। এটা একটা প্রথম দিক। তারপরে আমাদের অন্যান্য নার্সিংহোম থেকে আমাদের রেট চার্ট অনেক কম, যেখানে প্রতিটা মানুষ অ্যাপ্রোচ করতে পারে। আমাদের আইসিইউর যেটা লেভেল, ওটা আমরা কর্পোরেট লেভেলের একটা পরিষেবা দিই। 24 ঘন্টা আমাদের আইসিইউ আরএমও এবং এমার্জেন্সি আরএমও থাকে। কিন্তু আমাদের যেটা একদিনের চার্জ, ওটা কর্পোরেট হসপিটাল থেকে অনেক কম, যেখানে যে কোনো মানুষ আইসিইউ এসে অ্যাপ্রোচ করতে পারে। আমি মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, হসপিটাল ম্যানেজার। ব্যুরো রিপোর্ট, টিডিএন বাংলা।